Good evening, ma'am. चालू करें? Nothing here. Faculty has joined. Faculty is, I think there are two eminent faculties, so I think Rita ma'am might be one of them. A very good evening to the esteemed faculty for today. Rita Bharadwaj ji, Chairman of Ahmedabad Branch, CA Harit Dhariwal, senior members and my dear friends. Welcome to this beautiful session of COVID precaution as well as prevention and recovery. Let's begin the session with ICI motto. Request everyone to put their right hand on their heart for ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, Shehzad bhai. Welcome back. I hope you all are okay and must be doing good. We are back after the second wave and I hope things are improving. With this, I would now request Chairman of Ahmedabad Branch, CA Harit Dhariwal, to give opening remarks. Thank you, Anjali Ben. Very respected faculty for the session, Ms. Rita Bhardwaj ji, who has joined us virtually. The coordinator for the session, Arpita, Secretary of the branch, Anjali Ben, and all the participants. A very good evening to all of you. So I think apart from the fitness that we do in the morning, a very interesting session we are lined up today on the COVID prevention and recovery. I think we all are, most of us would have faced this, and there are a lot of questions which come in regarding the strategies and diet plan as far as the pre-COVID and post-COVID are concerned. And I'm sure today a lot of questions would be answered by Rita ji that members will be having on this topic. So I will not take much of the time. I'll just thank again Rita Bhardwaj ji for joining us today virtually. And I'm sure we all will going to have a great session today. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Thank you. I'm so sorry. Yes, please. Thank you, Chairman. Ma'am, we need to introduce you, ma'am. You have spared your valuable time for us. So I will request I think Arpita. Divya, Arpita. Arpita, please take the session ahead by introducing our esteemed speaker. Thank you, Harit sir and Anjali ma'am for giving me this opportunity. First of all, I've already conveyed it quite a few times to Harit sir about that. Kudos to the entire Ahmedabad team for coming up with this great movement, and we are thoroughly enjoying it. And yeah, we are even seeing good benefits out of it. And now also grateful for the session and that I have the opportunity of introducing Ms. Rita Bhardwaj. So she is basically a dietetics professor turned clinical nutritionist. Ms. Bhardwaj currently works with leading multinational research organizations where she deals with BA/BE studies, clinical trials, drug and nutritional interactions, and much more. She has also been practicing as a freelance dietitian and nutritionist from past 20 years and has headed quite a few seminars, workshops, webinars, panel discussions at different professional platforms. So now I'll request her to start with the session and give us some insights. Thank you, Arpita. And thank you, everyone. Actually, right now, this is very crucial topic and very vulnerable too. As we all experienced, the second wave was literally serious. So, कहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत थी, कहाँ पे एलोपैथी फेल हो रहा था, कहाँ पे
आयुर्वेदिक चीजें काम कर रही थी, या कहाँ पे आयुर्वेदिक सिर्फ काम नहीं कर रहा था। तो ये सब जो एक कंफ्यूजन था, वो क्यों था कंफ्यूजन? क्योंकि कोविड-19 जो एक वायरस है, ये इतना नोवेल वायरस है, और ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से इसका अटैक हुआ, किसी को भी इसकी इटियोलॉजी, इसकी फार्मेकोलॉजी पता ही नहीं है, इसका कोई रैशनल नहीं है, इसका कोई जेनेसिस नहीं पता, तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं पता। बट फॉर्चुनेटली ये लास्ट 1 ईयर में वी एटलीस्ट कम टू नो वन थिंग, कि इम्यूनिटी अगर अप है तो हम इस वायरस से काफी हद तक फाइट कर सकते हैं। ये एक चीज, नंबर 1 इम्यूनिटी, एंड नंबर 2 हमें इसकी इटियोलॉजी नहीं पता, इसका जेनेसिस नहीं पता, बट ये किस तरह से अटैक करता है वो हमें पता है। तो ये अटैक किस तरह से करता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, लंग्स पर अटैक करता है। तो ये एक चीज तो हमें पता चली। तो जब तक हमें अपने दुश्मन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो हम उस पर वार कैसे करेंगे? हम उस जंग को जीतेंगे कैसे? तो हमें यहाँ पर अटैक का तो कुछ पता ही नहीं है कि अटैक कैसे करना है, हमें सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म पता है। और यस, लेटली एक चीज और समझ में आई कि लंग्स तो इनफैक्ट होते ही होते हैं। तो ये दो चीजें अगर हमें पता है, तो हम पहले से इन दोनों एस्पेक्ट्स पर काम करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करके कोविड से बच भी सकते हैं, प्रिवेंशन, एंड इसे क्योर भी कर सकते हैं। सो क्यूरेटिव दोनों टाइप की स्ट्रेटजीज पर आज हम बात करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं करेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी तो पर्याप्त है ही नहीं, अकेला ये सफिशिएंट ही नहीं है। तो हमारे पास जो बहुत पुराना ज्ञान है नेचुरोपैथी का, जो बहुत पुराना ज्ञान है आयुर्वेदिक चीजों का, मेडिसिनल हर्ब्स का, न्यूट्रिशन का, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीजों का जो मिलजुल करके एक जो पैकेज है, ये पैकेज की कोरोना से फाइट करने की जरूरत है। ये पैकेज हमें इससे बचाएगा। ये वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ है कि जिसने भी इस पैकेज पर काम किया है ना, वो सब बिल्कुल कोरोना हुआ, बट ठीक है, इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं थे, ठीक भी हो गया, आया और चला गया। एंड एक चीज और बड़ी सैड है कि सेम आरटीपीसीआर वैल्यू की रिपोर्ट्स दो लोगों की अगर है, सीटी वैल्यू 12 है, एक 15 इयर्स के बॉय का भी 15 आरटीपीसीआर में अगर सीटी वैल्यू आ रहा है, और एक एजेड पर्सन का भी आ रहा है, तो दोनों केस हो सकते हैं। लास्ट 2-3 डेज की ही बात है कि जो 15 इयर्स ओल्ड बॉय था वो बच नहीं सका, और जो ओल्ड एज पर्सन था वो बच गए। तो ये सेम सीटी स्कोर किसी के लिए तो फेटल हो रहा है, और कोई उसमें से रिकवर होके भी निकल रहा है। तो इसका ये मतलब है हर इंडिविजुअल बॉडी कोरोना वायरस से बिल्कुल यूनिक वे में फाइट कर रही है, बिल्कुल यूनिक वे में उसको हैंडल कर रही है। तो अब जिस दुश्मन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसके अगेंस्ट जब हमें एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, तो हमें एक भी एस्पेक्ट को अनटच्ड नहीं छोड़ना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक एक करके हम सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी चल रहा है, इम्यूनिटी एंड डाइट, उसकी तो हम बात करेंगे, बट जो सबसे बड़ी एक चीज सामने आती है कि घर के अंदर जैसे ही कोई एक पर्सन पॉजिटिव आता है, बाकी सब लोग दो तरह के केसेस देखने को आ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि एक जन अगर पॉजिटिव आया तो वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब मेरी वजह से बाकी सब पॉजिटिव आ जाएंगे, या घर वाले उस एक पेशेंट की केयर करने में डर रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कहीं एक छोटी सी चूक उसके लिए फेटल ना प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हम इस टेंशन को दूर करते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारे घर में अगर हमें पता चलता है कि कोई पर्सन पॉजिटिव आया है, तो हमें नंबर 1 उसको आइसोलेशन में रख देना है। आइसोलेशन में एक ही मिनट, शायद मेरे पास उसका एक पीपीटी है, तो आई कैन शेयर विद यू। Just a minute, give me few minutes.
I think you are able to see this screen. Is it so? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. तो जैसे ही कोई कोविड पेशेंट हमारे घर में आता है ना, तो सबसे पहले हमारा टेंशन ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसको ट्रीट कैसे करें। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, या तो वो पर्सन का जो एक उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज है। अब वो आइसोलेशन में जब हम रखते हैं तो वहां पर एक 2-3 चीजें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। नंबर 1, हमेशा उस पर्सन से हमें एक डिस्टेंस बना के रखना है, और अगर बहुत अर्जेंट इंटरेक्शन है तभी हमें उससे इंटरेक्ट करना है। आप फोन पे, वीडियो कॉल पे उसके साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट आप उसको मिल नहीं सकते। तो ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, कि किस तरह से हम, मतलब बच्चे को या बुजुर्ग है तो उसको हम अकेला रूम में कैसे पड़ा रहने दें, तो वो जो इमोशनल चीज है उसे थोड़ा सा हमें साइड में छोड़ देना पड़ेगा। तो 1 मीटर का डिस्टेंस हमें जरूर से रखना ही रखना है। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उसके बर्तन हमें बिल्कुल अलग रख देने हैं, कपड़े अलग रख देने हैं, पर्सनल यूज की चीजें जो है वो बिल्कुल अलग कर देनी है, सो दैट कहीं पे भी कंटामिनेशन जो है वो बाकी के फैमिली मेंबर्स को ना फैल सके, कंटामिनेटेड ना हो सके। सेपरेट रूम जो हम उस पर्सन के लिए रखते हैं, उसमें उसका अलग ही बाथरूम हो तो बेटर है। इफ नॉट पॉसिबल तो उसका एटलीस्ट जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड हो, विंडोज उसमें हो, ताकि उस पर्सन को फ्रेश एयर मिले। अब यहाँ पे एक चीज मुझे और बहुत जरूरी लगती है बतानी। हमें इतना नॉलेज है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन गिविंग हैं, तो जब हम आइसोलेशन में पर्सन को रख रहे हैं तो क्या हम उसके रूम में वो इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं एंड 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, जैसे तुलसी का पौधा है, जैसे बैम्बू प्लांट है। तो ये वाले प्लांट्स जो है जेड, ये 3-4 प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरे टाइम ऑक्सीजन देते हैं, डर्सीना भी। तो ये इंडोर प्लांट्स हम डेफिनेटली उस पर्सन के रूम में रख सकते हैं ताकि उसके रूम का ऑक्सीजन लेवल अप रहे। बाकी की ऑक्सीजन लेवल को अप रखने के लिए क्या क्या करना है वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट ये हम उसके रूम में जो प्रिपरेशंस करनी है उसकी हम बात कर रहे हैं। देन हम वो रूम में कैम्फर की छोटी छोटी टेबलेट्स हर थोड़ी थोड़ी जगह पे रख सकते हैं, बेड पर पिलो के पास रख सकते हैं, या एक पोटली बना करके उसको पकड़ा सकते हैं। वाई कैम्फर? बिकॉज कैम्फर हैज सच वोलेटाइल ऑयल्स जो हम जाकर के हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज जो प्रोग्राम लंग्स में चलता है, ये उसको एनहांस करते हैं, उसकी कैपेसिटी को एनहांस करते हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा उपाय है बट बहुत ही कारगर उपाय है, ये हम कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, उसके रूम में कुछ इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैंडी रखने हैं। कौन से हैं वो इक्विपमेंट्स? नंबर 1, थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर हमें उसको देना है। एवरी 6 आवर्स पर अपना टेम्परेचर चेक करें और एक चार्ट बना के रखें, जिससे कि हम उस चार्ट को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते वक्त प्रेजेंट कर सके, ताकि डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने में ईज हो। नंबर 2, ऑक्सीजन मीटर। ऑक्सीमीटर हमें उसके पास रखना है एंड एवरी 4 आवर्स ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ये 2 तो 100% रखने ही है। तीसरा एक और जो प्राकृतिक चिकित्सा से हमने सीखा है, ये है 2 चीजें। नंबर 1, स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना। तो स्टीम लेते वक्त अगर हम उस स्टीम में अजवाइन, लवंग और तुलसी डाल देते हैं, या 2-3 पत्ते हम बे लीफ के, तज पत्ता जिसको बोलते हैं, वो डाल देते हैं, तो इन सभी मेडिसिनल हर्ब्स में से जो एसेंशियल ऑयल सिक्रीट होते हैं ऑन हीटिंग देम, वो स्टीम के साथ हमारे लंग्स में जाकर के लंग्स के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। तो एक ये छोटा सा उपाय है, अगर हम ये करवा देते हैं
तो इन्फ्लेमेशन में हम मेडिसिन के बराबर ही हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज मेडिसिन तो हमें पता भी नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या वो सही मेडिसिन दे भी रहे हैं कि नहीं। कोरोना से जो इन्फेक्शन हुआ है उसका अभी तक भी कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट तो है ही नहीं कि कौन सा मेडिसिन रेमडेसिविर काम कर रहा है कि कोई स्टेरॉइड काम कर रहा है। जब हमारे पास कोई एक डिफाइंड मेडिसिन का लाइन ही नहीं है, तो हमें ये ऑल्टरनेट मेडिसिन पर भी जरूर फोकस करना चाहिए। एंड आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिन्होंने ये छोटी छोटी प्राकृतिक चिकित्साएं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी यूज की विद एलोपैथी और विदाउट एलोपैथी भी, उनका इम्प्रूवमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो बड़ा सिंपल सा उपाय है, ये हम करेंगे। एक चीज और है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर अगर हम हीट एप्लीकेशन करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। तो यही थियरी को हम लंग्स पे लगाते हैं। अब अगर हम हॉट वाटर बैग से या इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से चेस्ट के पोर्शन में आगे एंड पीछे दोनों साइड सेक करते हैं, तो डेफिनेटली उसको लंग्स की इन्फ्लेमेशन में बहुत आराम मिलेगा और लंग्स जो डिटीरियोरेट होते चले जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से 3-4 चीजें जो हमने अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेदा से सीखी है, इसको भी हमें इम्प्लाई करना है। देन अब रेड फ्लैग कब होगा, हमने उस पर्सन को अलग रखा है, लेकिन और हमने बोला है ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिएगा, हमने बोला है टेम्परेचर चेक करते रहिए। टेम्परेचर अगर हाई होता है, 101 से ऊपर जाता है, तो कोल्ड स्पंजिंग भी करना जरूरी है। जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं, पैरासिटामोल या डोलो, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उस मेडिसिन के साथ में आपको कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट कर देना है। 101 से फीवर को ऊपर नहीं जाने देना है। एंड डे 1 से ही, चाहे सिम्टम्स हैं फीवर और कफिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के या नहीं है, अगर आप पॉजिटिव डायग्नोज हुए हैं तो प्लीज स्टार्ट इनहेल, स्टीम इनहेलिंग एंड हीट एप्लीकेशन ऑन चेस्ट। ये 2 चीजें तो स्टार्ट कर ही देना है। और इसके साथ प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, कौन से प्राणायाम करने चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये चीजें सब हम क्यों कर रहे हैं, मारामारी किस चीज की चल रही है, लंग्स को बचाने की, क्योंकि इसमें जितने भी कैजुअलिटीज हुई हैं वो लंग्स डैमेज हो जाने की वजह से हुई हैं। तो लंग्स को बचाने का वॉर लेवल पे स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हमारे पास, और हम लोगों को वेल इक्विप्ड रहना है, नॉलेज से भी एंड इंस्ट्रूमेंट से भी। जो जिस तरह से हमें पता चलता है कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी काम करती है, तो वो सब हमें करना है। तो ये तो हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की बात किया था। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो अगर या नहीं भी हो, तो हमें डे 1 से ही पॉजिटिव पेशेंट को देनी है। वो है हाई ORAC वैल्यू के जितने भी फूड आइटम्स हैं वो सब देने की जरूरत है। वो क्या है उसको भी हम डेफिनेटली थोड़ी देर में जब डाइट डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने पेशेंट को अलग रख दिया, उसको वेल वेंटिलेटेड रूम दिया, उसके रूम में हमने ऑक्सीजन जनरेट करने वाले ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स रख दिए, एंड हमने ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहे, प्योर एयर रहे, एंड एक उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं अगर हम कैंपर रख देते हैं। उसके साइंटिफिक रीजन तो है ही, साइंटिफिक रीजन के साथ साथ उसके इतने सारे दूसरे फायदे भी हैं कि पर्सन का ध्यान जो है वो अपनी सिर्फ डिजीज से हट करके थोड़ा सा अलग माहौल में चला जाता है। तो ये 2-3 चीजें हमने किया। अब ये तो हमने पेशेंट के लिए किया, जो पेशेंट नहीं है वो क्या करेगा, वो 1 मीटर का डिस्टेंस बना के चलेगा, दैट इज ट्रू। बट जब फूड देने जाए तो डबल मास्क N95 एंड एक उसके ऊपर सर्जिकल मास्क, 2 मास्क पहन करके फूड एक बाहर ही, रूम के बाहर ही एक किसी बफर प्लेस पर रख देना चाहिए, स्टूल पर या किसी भी जगह पर, टेबल पर, जिससे कि वो पर्सन अपने आप उसको ले ले और वहां से हट जाना चाहिए। खाना कैसा लगा, तुम कैसे हो, ये सब बातें हम फोन पे कर सकते हैं, बट पास खड़े होकर के हमें बात नहीं करना है। एंड घर में जहां कहीं भी हमें पता है कि कहीं पर भी उसका टच लगा होगा जहां पर वो पर्सन बैठते हैं, वो सब चीजों को प्रॉपरली सैनिटाइज करना है। इट मे बी टैप, इट मे बी हैंडल्स, डोर के नोब्स हैं, सोफा है, टेबल है, तो सब चीजें अच्छे से प्रॉपर घर में सब कुछ सैनिटाइज करना है। बाकी के घर के लोगों को भी
खाने पीने की जितनी भी, डाइट की जितनी भी हम बात करेंगे, वो सारी की सारी प्रिकॉशंस बाकी के लोगों को भी लेना शुरू कर देना है, बिकॉज घर के अंदर एक पॉजिटिव पेशेंट है, मतलब घर के अंदर वायरस तो है ही। तो वो प्रिवेंशन के जितने भी चीजें हैं, जितने भी तरीके हैं, वो बाकी के मेंबर्स को भी शुरू कर देने हैं, और बाकी सभी फैमिली मेंबर्स को गार्गल करना, चाहे लिस्ट्रीन से करें, चाहे हल्दी और नमक के पानी से करें, चाहे सिर्फ गर्म पानी से करें, ये कर देना शुरू करना है। गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। और जो मैंने बताया कि घर के अंदर आप ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स लगा सकते हैं, वो जरूर कर लेना है। तो इतना सा ध्यान बाकी लोगों को रखना है, और पेशेंट का किस तरह से ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। अब अगर पेशेंट अंदर फील करता है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, या चेस्ट पे प्रेशर फील हो रहा है, पेन हो रहा है, लिप्स का कलर उसका जो है वो ब्लूइश टर्न हो रहा है, फेस का कलर ब्लू टर्न हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये रेड फ्लैग्स हैं। इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करने की, डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। फोन नंबर डॉक्टर का हर पर्सन को, घर के हर मेंबर को हैंडी रखना चाहिए। एंड एक चीज और है, अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे आता है तो हाई अलर्ट, 92 से नीचे चला जाता है तो बिल्कुल डॉक्टर से तुरंत बात करके और उसको अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करने की जरूरत है। 90 से नीचे जाएगा तब थोड़ा सा वो डेंजरस हो जाता है, लेकिन अगर नीचे जा रहा है ऑक्सीजन लेवल, तब उस केस में हमें स्टीम इनहेलेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम और हीट एप्लीकेशन और बढ़ा देना है। अगर आप पहले दिन में 3 बार कर रहे थे तो अभी हम 7 बार 8 बार भी कर सकते हैं, राइट? ये चीजें ही हैं जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को फास्ट इंक्रीज करेंगी। अगर ऑक्सीजन लेवल डिप जा रहा है और आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा? अगर स्पीच स्लर्ड है, अनयूजुअल वीकनेस है लिम्स में, या फिर हाथ और आईज के नीचे का पोर्शन ब्लूइश टर्न हो रहा है, ये छोटे छोटे से इंडिकेशन है जिससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है और प्राणायाम करना जरूरी है। बाकी जितनी भी बातें हमने की ऑक्सीजन लेवल को अप लाने के लिए, वो सब करना है। हाई और एक्ट डाइट भी हम देंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी डाइट के पोर्शन में। एंड एक चीज और हमें पेशेंट को समझानी है कि डे टाइम नैप ना ले, एक्टिव रहे पूरे टाइम। एक्टिव मतलब एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्टिव का मतलब चलना फिरना नहीं है, लेटे रहना है, रेस्ट करना है, बट माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखना है, ऑक्यूपाइड रखना है। बिकॉज अगर दिन में सोएंगे पूरे टाइम तो वो जो हमें वाटर इनटेक इतना करवाना है ना, वो हम नहीं करवा पाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें इतने सारे देने हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज, रात को फिर नींद नहीं आएगी और अनइजीनेस फील होगा। अगर रात की स्लीप डिस्टर्ब हुई तो वो पर्सन को बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होगा। तो दिन के टाइम पर नैप मिनिमम करना है। उसके लिए बार बार आप योग निद्रा कर सकते हैं, बार बार आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बार बार आप प्राणायाम कर सकते हैं, और बाकी तो पूरे दिन का डाइट शेड्यूल ही इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर कोई पर्सन पेशेंट है तो उसका कि वो हर 2 आवर्स में कुछ ना कुछ खा ही रहा होगा या लिक्विड्स ले रहा होगा। तो नैप को अवॉइड करना है। अभी नैप को अवॉइड करने का ये मतलब नहीं कि प्राणायाम बोला है तो यार इसकी क्या जरूरत है, मैं फोन पे बात भी तो कर सकता हूँ। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स नहीं थे, तो जैसे मेरे ही घर में कुछ पेशेंट्स ऐसे थे, उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज गोल्डन टाइम, अभी तो रेस्ट करने को मिला है, और जितने लोगों से कभी फोन पे बात नहीं की है सबसे अभी फोन लगाओ, उसको भी फोन लगाओ, उसको भी फोन लगाओ, बरसों पुराने दोस्तों को भी अब निकाल करके टाइम है तो अभी सबसे बात करते हैं। ये नहीं करना है। इसका बेसिक रीजन है कि व्हेन यू स्पीक यू ब्रीथ लेस, सो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है हमें, तो हम खुद अपना ऑक्सीजन लेवल डाउन करते जा रहे हैं। तो मौन व्रत धारण कर लेना है, बोलना तो नहीं है, जहां जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। कंटिन्यूअसली स्पीच जो है that is also bad, and that can be a cause of dip in oxygen level, so don't do that. And बहुत सारा फ्लूइड तो देना ही है, वो किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं that I will share.
बार बार हैंड्स वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, ये रूम के अंदर जो आइसोलेशन में है उसे भी एंड जो बाहर लोग हैं उन्हें भी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग अपना मास्क धो करके रीयूज करते हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट। ट्रिपल लेयर मास्क लीजिए एंड 8 आवर्स अगर वो यूज हो गया है तो विदाउट और सेकंड थॉट उसको फेंक दीजिए, डिसइंफेक्ट करके उसको एक बार सैनिटाइजर उसके ऊपर पूरा स्प्रे कर दीजिए और फिर उसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। प्लीज उसे रीयूज मत करिए, बिकॉज उसको रीयूज करना अगेन बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड एक छोटा सा प्रैक्टिकल तरीका और है, अगर आपके पास ऐसा मास्क है जो रीयूज हो सकता है, if it is proven clinically, काफी सारे अभी मास्क पर आ रहा है कि it is proven that it can be reused, then take 4 मास्क एंड जो आज आपने लगाया है उसको ला करके घर में किसी ऐसे कॉर्नर में, ऐसे बाथरूम में टंगा दीजिए जहां पर कि आपका हाथ नहीं लगता है या जहां पर बहुत ज्यादा आपको जाना नहीं होता है। अब उसको 72 आवर्स के लिए वहीं पे रहने दीजिए, नेक्स्ट डे आप दूसरा पहनिए, उसको भी टंगा दीजिए, थर्ड डे 72 आवर्स के बाद आप फर्स्ट वाले पर आएंगे। इस तरह से 4 अगर मास्क रख लेते हैं तो 4th डे आपका फर्स्ट वाले मास्क का नंबर आए, ऐसा करिए। तो वो 4 मास्क एक लाइन में रख दीजिए, या फिर आप प्लीज सिंपल सा एक थंब रूल बना लीजिए, रोज का 1 मास्क यूज किया और फेंक दिया। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्लीज हर दिन दूसरा मास्क यूज करना है 72 आवर्स के उस मास्क के भी आइसोलेशन के बाद। एंड जब कभी भी आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो डिसइंफेक्ट करके ही आप उसको फेंकेंगे, ऐसे ही आप उसको नहीं फेंक दीजिएगा। ये तो 2 चीजें जो आपके पास घर में होनी चाहिए। नाउ अगर कोई बिल्कुल माइल्ड केस के पेशेंट्स हमारे पास हैं तो तब भी क्या हमें बहुत ज्यादा बार बार 4 घंटे में ही ऑक्सीजन लेवल चेक करना है और जो जितना भी हम बात कर रहे हैं वो सब करना है? तो यस, अगर मॉडरेट इलनेस के साथ कोई पेशेंट है, उसका अगर ऑक्सीजन लेवल 95-94 रहता है, तब भी हमें उस पर्सन को जो केयर हम कर रहे हैं ये एज इट इज करनी है, हीट एप्लीकेशन भी, स्टीम इनहेलेशन भी, जब तक कि वो पर्सन नेगेटिव नहीं आ जाए। बिकॉज ये बहुत ज्यादा हमने देखा है कि कोविड के केसेस में 2 to 3 days 4 days आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एकदम से पता चलता है कि लंग्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन 50% डैमेज हो गया, विद इन 2-3 days इतना डिटीरियोरेट हो जाता है। तो हमें वो चांस ही नहीं लेना है। अगर बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं तब भी जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करना ही है। असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनका क्या? अगर आपने अपना चेकअप कराया है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है आप, आपका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीटी स्कोर जो है वो बहुत हाई है, जिसमें कोई टेंशन नहीं है उन्हें, तब भी उस केस में भी आपको फीवर भी नहीं है, आपको कफ भी नहीं है, सोर थ्रोट नहीं है, मसल पेन, नोशिया, डायरिया, इसमें से कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, इवन देन आपको सारे के सारे प्रिकॉशंस वैसे ही लेने हैं, आइसोलेशन में रहना है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। और फीवर नहीं है तो ठीक है, आप फीवर मत चेक करिए, बट उसी तरह से डीप ब्रीदिंग बार बार करना है, मेडिटेशन करना है, डाइट का पूरा ख्याल रखना है, कोई एक्सर्शन नहीं करना, प्लीज मार्क दीज लाइंस, कोई एक्सर्शन नहीं करना। 2 केसेस हमारे ही सामने ऐसे हुए हैं, बिकॉज असिम्प्टोमेटिक थे एंड उन्हें नहीं समझ में आया कि एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज किया और ब्रेन हैमरेज हुआ, और एक केस में हार्ट अटैक हुआ। तो ये असिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, कंप्लीटली हेल्दी लोग थे, फिर भी ऐसा हुआ बिकॉज कोविड पॉजिटिव तो थे ही, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस उनके सिस्टम को तो वीक कर ही रहा था। तो जैसे ही आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा ढीला किया, रेस्ट फेज में से बाहर निकाला, वैसे ही कोरोना का अटैक और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमें तो पूरे टाइम कोरोना को अटैक करना है, उसे कहीं पर भी अपने से स्ट्रॉन्ग होने नहीं देना है। तो ये जो 2-3 चीजें हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया है, ये
पूरा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डाइट में हमें किस तरह से क्या क्या चेंजेस करने हैं। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम नॉट वेरी मच टैक्स सेवी, सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैसे हमको कोविड पेशेंट को ध्यान रखना है। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हमने डिस्कस किया। अब हम उसकी डाइट पर आते हैं, उसकी प्लस जो केयर टेकर्स हैं उनकी डाइट। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जो कोविड पेशेंट है, जो पॉजिटिव आया है, उसका डाइट कैसा होना चाहिए, उसका एंड उसके सभी घर वालों का, जो उस घर में रह रहे हैं लोग, बिल्कुल सेम डाइट प्लान होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लोगों का बिल्कुल सेम डाइट प्लान होगा। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इसको कोरोना हुआ है, हमें तो नहीं हुआ है तो हम क्यों इतना सारा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। नहीं, घर में वायरस है तो हमें क्यों रिस्क लेना है। एंड जितनी भी चीजें हम उस पेशेंट को देने वाले हैं वो सबकी सब प्रिवेंटिव है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली है, तो क्यों हम सब फॉलो नहीं कर सकते। तो ये हमें एक चीज ध्यान रखना है। सुबह की शुरुआत से लेके रात तक का मैं पूरा का पूरा आपके साथ प्लान डिस्कस करती हूँ, और कौन सी चीज हम क्यों दे रहे हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। एंड जो भी कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे तो वो प्लीज आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। सो मीनवाइल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सुबह में उठते ही गार्गल्स करने को बोलना है। गार्गल्स क्यों करवाने हैं? क्योंकि ये जो हमारा नेजल ट्रैक है एंड माउथ है, एंड नेजल ट्रैक, माउथ एंड दिस ट्रैकिया पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन कोविड-19 वायरस की ग्रोइंग फैक्ट्रीज हैं। ये यहाँ पर मल्टीपल होता है, तो इसलिए ये इसकी जो साइट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, हमको इन फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके रखना है। ये कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? एवरी 2 आवर्स एक ना एक चीज, हीट एप्लीकेशन, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि हीट एप्लीकेशन से हम कोरोना वायरस को काफी हद तक डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मार सकते हैं कि नहीं वो नहीं पता है, बट यस हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सुबह उठते ही गार्गल्स किया तो अपनी ये फैक्ट्री को, अपने माउथ को आपने बचा लिया। एंड गार्गल्स करते वक्त एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आपको मुंह के अंदर पानी रख के कुल्ला बहुत ज्यादा गर्म पानी के साथ करना है, ताकि जो आपके टीथ के बीच की स्पेस है, आपका जो म्यूकस लेयर है मुंह के अंदर का, टंग के आजू बाजू का एंड टंग के ऊपर का, वो एरिया भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब पानी कौन सा आप लेंगे? क्या तो आप हल्दी और नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं, या आप लिस्ट्रीन डाल के गार्गल्स कर सकते हैं, या आप नीम के पत्ते डाल करके पानी बॉईल करके उससे गार्गल्स कर सकते हैं। जो भी चीज आपको सूट करती है, जो भी चीज आपको पसंद आती है। प्लेन गर्म पानी से भी यस आप जरूर गार्गल्स कर सकते हैं, बट ये करना जरूरी है। उसके बाद कुछ कॉन्कॉक्शंस हैं जो देने चाहिए हमें कोविड पेशेंट को भी, एंड प्रिकॉशनरी भी ये हमें लेने चाहिए। बट बिकॉज अभी गर्मी इतनी ज्यादा है, इसलिए हर किसी को ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। जो पॉजिटिव है और जिसके घर में पॉजिटिव केस है, सिर्फ उन्हीं को अभी ये स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज इतनी गर्मी में जितने भी कंकॉक्शंस कोरोना के लिए हम बात करते हैं, वो सबके सब गर्म तासीर के होते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा उकाले काढ़ों का इतना ज्ञान अभी व्हाट्सएप पे, गूगल पे चलता है, तो वो सब कहीं ना कहीं से, एंड हर चीज के ऊपर लिखा होता है इम्यूनिटी बूस्टर। एक तो काढ़ा का एक मैंने रेसिपी कहीं एक ऐड देखा था, वो कोरोना को दूर रखें, ये वो काढ़ा का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। एंड थोड़े दिन के बाद मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जिन्होंने मुझे बोला कि उन्हें पूरी लाइफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अभी ऑल ऑफ अ सडन नोज ब्लीडिंग शुरू हो गया है। एंड जब हमने असेसमेंट किया, डाइट का डिगिंग किया, बहुत सारा खुदाई किया, तो पता चला कि ये काढ़ा वो हर रोज दिन में 3 बार लिखा था उस पे लेने के लिए, तो वो दिन में 3 बार ले रहे थे। अब उस काढ़ा में जितनी भी चीजें थी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, वो सब बहुत गर्म तासीर के थे, उसकी वजह से नोज ब्लीडिंग शुरू हुआ। तो ये प्लीज बहुत ध्यान रखना है। एंड जिन लोगों का हाई बीपी रहता है, उन्हें ये कॉन्कॉक्शंस नहीं ही लेने, इनके बिना भी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज, अगर एसिडिटी है किसी को ऑलरेडी, तब भी ये कंकॉक्शंस नहीं देने।
सुबह सुबह जो हल्दी, तुलसी, अजमा और बहुत सारे जो जितने भी आप चीजें सुनते हैं डाल करके उकाला बन रहा है, अभी ऑलमोस्ट हर घर में बनता है ये काढ़ा उकाला। तो ये अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है, अगर कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, अगर कोई जिसको पेप्टिक अल्सर्स हैं, ऐसा कोई पेशेंट है, उसे नहीं देना। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बिकॉज दीज ऑल आर मेडिसिनल हर्ब्स, इनकी अपनी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। तो ऐसे ही हर किसी को हम सजेस्ट नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में हम ये नहीं दे सकते कंकॉक्शंस। तो वो दोनों तरह की हम बात करेंगे कि अगर जो हेल्दी पर्सन है उसको हम कौन सा देंगे, और हाई बीपी, प्रेगनेंसी एंड ये पेप्टिक अल्सर्स, एसिडिटी वाले पेशेंट्स को हम कौन सा देंगे। If you want to write down, you can write down. Number 1, हेल्दी पेशेंट्स को, हेल्दी पर्सन को हम क्या देंगे, उसके उकाला में 1 कप के जितना आपने वाटर लिया, बिग 1 कप 150 ml के जितना, उसमें आपने 2 leaves, only 2 leaves. Excess of everything is bad. Excess of everything is poison. In nutrition science, we always say that excess of every nutrient is poison. एप्पल बहुत अच्छा होता है खाना, बट यस बहुत अच्छा है एप्पल, बट अगर आप बहुत दिन में सिर्फ एप्पल ही खा रहे हैं तो उससे नुकसान ज्यादा होंगे फायदा होने के बजाय। एक्सेस तो हर चीज की बुरी है। 2 लीव्स बस इतनी काफी है। 1 कप काढ़ा में 2 पत्ते तुलसी के डालना है, 1 पिंच के जितना सिनेमन डालना है। सिनेमन को बॉयल होते हुए पानी में कभी नहीं डालना चाहिए, आप उसका पाउडर करके रख दीजिए, वो एंड में डलेगा। लेमन भी जिस कंकोक्शन में डालना है वो एंड में डलेगा, वो बॉयल नहीं होगा। अब इसके अंदर 1 पिंच के जितना सौंठ पाउडर आप डाल सकते हैं, या थोड़ा सा जिंजर को घिस के 2-3 डैशेस ऑफ जिंजर, उतना आप जिंजर डाल दीजिए। 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल दीजिए, एंड 2 to 3 पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर आप डाल दीजिए। ब्लैक पेपर डालने का सिर्फ इतना ही रीजन है क्योंकि टर्मरिक में जो कुरकुमिन होता है वो पिपरिन की एब्सेंस में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि जहां कहीं पर भी आप हल्दी यूज करते हैं, वहां पर अगर आपने काली मिर्च का यूज नहीं किया ना, तो वो कुरकुमिन आपको उससे मिला ही नहीं। तो जो भी आप सब्जी भी बनाते हैं, हर सब्जी में टर्मरिक पाउडर के साथ आपको थोड़ा सा ब्लैक पेपर तो डालना ही है। अब ये थोड़ा सा कितना, अगर आपने 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है, किसी भी सब्जी का हम बात कर रहे हैं, अगर 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है तो उसका 1/4 पोर्शन, लाइक 2 to 3 पिंच ब्लैक पेपर का पाउडर सफिशिएंट है। इतना उसमें जरूर ऐड करना है, और ये इतना सा ऐड करते ही कुरकुमिन का एब्जॉर्प्शन 2000%, यस राइट, 2000% इंक्रीज कर देता है। तो ये एक छोटा सा चेंज आपकी कुकिंग में जरूर कर लेना है, सब्जी में आपको ये डालना है। तो हम उकाला का बात कर रहे थे, उसमें बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस किया, एंड ये हमने ब्लैक पेपर भी डाला। अब ये जब पूरा अच्छे से उबल गया तब हमने उसको छान लिया। अच्छा, इसी कंकोक्शन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर से कोई पेशेंट डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो आप इसी उकाला में 3 to 4 करी लीव्स भी डाल सकते हैं। अब ये आपने स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेन करने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डालेंगे। ये कंकोक्शन आपका एक रेडी हुआ। दूसरा, जिनको एसिडिटी है उनका हम बात कर रहे थे, उनका कंकोक्शन क्या होगा, उसमें हम डालेंगे मिंट लीव्स, 10 to 12 मिंट लीव्स डालेंगे। 1 स्पून के जितना सौंफ का सौंफ साबुत या पाउडर, दोनों चीज आप डाल सकते हैं। वरियाली, फेनल सीड्स, तो फेनल सीड्स डालेंगे, एंड 2 to 3 लीव्स ऑफ तुलसी के डालेंगे। अगर डायबिटिक है तो 2-3 पत्ता आप कड़ी पत्ता डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अब इसमें हम जिंजर नहीं डालेंगे, इसमें हम हल्दी भी नहीं डालेंगे, ब्लैक पेपर भी नहीं डालेंगे, सिर्फ तुलसी, सौंफ और पुदीना, ये 3 ही चीजें हम डाल रहे हैं। एक क्लोव हम इसमें डाल सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम ये हाइपरटेंशन के पेशेंट, एसिडिटी के पेशेंट्स और प्रेग्नेंट लेडीज के कंकोक्शन में और कुछ भी ना डालें, सिर्फ इतना ही डालें। एंड तुलसी, मिंट और जो वरियाली है, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन। तो दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड। अभी ये क्वेश्चन होगा कि तो फिर हम सभी लोगों को यही क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि जो हमने हेल्दी पेशेंट की कंकोक्शन का बात किया है,
दैट इज ये 15 नंबर पे आता है तो वो 20 पे आता है, तो ये 15 एंड 20 का डिफरेंस तो है। तो जो 20 आउट ऑफ 20 वाली चीज है, हम हेल्दी पर्सन को वही खिलाना चाहते हैं, इसलिए उसका कंकॉक्शन अलग है। एंड बिकॉज द अदर पर्सन दे आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, तो उनको इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स और एग्रावेट हो जाएंगी। तो ये एक कंकॉक्शन हुआ सुबह सुबह में। इसके बाद क्या लेना चाहिए, जो पेशेंट है उसको, हमको इसके तुरंत बाद, इसके मैक्सिमम 15 मिनट्स का आप गैप रखिए। एंड अब हाई प्रोटीन कुछ हमें उसको देने की जरूरत है, एंड जितना कुछ हो सके लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में देना है, सो दैट वो इजी टू डाइजेस्ट हो, इजी टू एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स है, आपने रात को 10 पिस्ता, 5 बादाम और 2 वॉलनट्स एंड फ्यू किशमिश, रेजिन्स। रेजिन्स की जगह पे अगर मुनक्का मिल जाता है आपको तो मुनक्का यूज करिए, थोड़ी बड़ी रेजिन्स होती हैं। किसी भी टाइप के फीवर में मुनक्का का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो फीवर को बहुत जल्दी क्योर करता है। तो एक्चुअली वो टी सेल्स पे काम करता है, वो हमारी फेगोसाइट्स पे काम करता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। टी सेल्स फाइटर सेल्स हैं बॉडी की। ये फाइटर सेल्स को जाकर के, जो ब्लैक रेजिन, जो बड़ा वाला रेजिन होता है मुनक्का, वो हमारी टी सेल्स को जाकर के इतनी पावर देता है कि वो किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को जाकर के उन फेगोसाइट्स के साथ मिलकर के उनको खा जाता है। तो ये उसका एक तरीका है काम करने का। तो ये 3-4 चीजें आपने भिगा के रखी, सुबह में इसको मिल्क के साथ आप चर्न कर दीजिए, ल्यूकवार्म या वार्म। ठंडा तो कुछ देना ही नहीं है, इन्फ्लेमेशन जिससे भी हो सकता है वो काम ही नहीं करना है। ल्यूकवार्म या वार्म मिल्क के साथ आप ये कोरोना के पेशेंट को दे सकते हैं। यस, अगर कोरोना का पेशेंट थोड़े से सिम्टम्स माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स हैं, तो आप उसके मिल्क में गंठोड़ा और वरियाली, ये 2 चीज जरूर से डाल करके बॉईल करेंगे, ताकि उसको नौशिया फील ना हो, एंड मिल्क भी फ्लैटुलेंस क्रिएट ना करे, बिकॉज पर्सन पूरे दिन लेटा रहने वाला है, तो उसको गैस ना हो, फ्लैटुलेंस ना हो, इजी टू डाइजेस्ट हो। तो ये एक मिल्क हम उसको देंगे। अब इस मिल्क के साथ जो भी ब्रेकफास्ट उनको पसंद है आप दे सकते हैं। हमारी तरफ से ये इतना न्यूट्रिशन सफिशिएंट हुआ। ये आपने करीब 8, साढ़े 8 बजे दिया होगा। देन 10 o'clock के करीब कुछ ऐसा देने की जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या हो सकता है, वो आप बेरीज दे सकते हैं, जैसे अभी चेरीज बहुत अच्छी आ रही हैं, वो आप दे सकते हैं। एप्रिकॉट दे सकते हैं, पीच दे सकते हैं। बिना खट्टे जितने भी नॉन सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो सारे आप दे सकते हैं। बनाना नहीं दीजिएगा, कीवी नहीं दीजिएगा। यस, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल थियरी कि कीवी और ऑरेंजेस, जब आपको आप पॉजिटिव हैं और आपकी लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्शन में हैं, खांसी हो रही है, तब सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने चाहिए, कोई भी खट्टी चीज नहीं देनी चाहिए। वो कब देनी है, 3-4 दिन के बाद। तो ये हम जो अभी डाइट की बात कर रहे हैं, ये शुरू के 3-4 दिन की बात कर रहे हैं। शुरू के 3-4 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, बिकॉज इस टाइम पर कोरोना को अटैक करके आपकी बॉडी को ग्रैब कर लेना है, और आपको डिफेंस इतना अच्छे से करना है कि कोरोना वापस चला जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। तो ये इस टाइम पर जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब चीजों में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रोल होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी ट्रोल पर है। अब जो भी चीज हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, वो सब ऐसी होनी चाहिए जो वेरी इजी टू डाइजेस्ट। प्रोटीन की भी सारी ऐसी फॉर्म्स होनी चाहिए वेरी इजी टू डाइजेस्ट। जैसे ये जो मैंने सुबह में एक ड्राई फ्रूट मिक्स वाला जो एक मिल्क बताया है, सेम ऐसा ही एक पाउडर करके हमें रख लेना है, जिसमें हम फॉक्सटेल नट्स यूज कर सकते हैं। फॉक्सटेल नट्स, उसके साथ में उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, पाउडर कर दीजिए, मखाना जिसको हम बोलते हैं। एंड उसको थोड़ा सा बल्क देने के लिए आप उसके साथ थोड़ा सा ममरा भी रोस्ट करके पीस सकते हैं, अदरवाइज व्हाइट ममरा, सिंपली उसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप पीस सकते हैं, जस्ट टू गिव सम बल्क एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट। और अदरवाइज आप उसमें ओट्स को थोड़ा सा सेक के मिक्स कर सकते हैं। अगर ओल्ड एज पेशेंट है, अगर डायबिटिक पेशेंट है, तो आप थोड़ा सा रागी का फ्लोर भी सेक करके मखाना के साथ पीस करके ये एक पाउडर बना के रख सकते हैं। एंड इसमें आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी पीस करके डाल सकते हैं, और वरियाली का पाउडर, पिंच ऑफ सिनेमन, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड थोड़ी हल्दी, ये चीजें भी डलेंगी 1 ग्लास जब ये बनेगा। तो
तो ये पाउडर आप रेडी रख लीजिए। मिल्क में, गर्म पानी में, किसी भी चीज में आप इसको अच्छे से एक बॉईल देंगे तो भी ये पक जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी रोस्टेड है। तो ये पाउडर आप उसको 10 o'clock के करीब देते हैं और उसके साथ में फ्रूट्स देते हैं। कौन से फ्रूट्स? जो खट्टे नहीं है, ऐसे फ्रूट्स जो खांसी नहीं करेंगे, कफिंग में जो उसको रिलैक्स करेंगे, ना कि उसको एग्रावेट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप जो भी खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं, पराठा से लेकर के इडली तक, जो भी आपको अच्छा लगता है वो खिलाइए। एक चीज और ध्यान रखना है, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी तो पिला ही देना है। तो दिन के 12 गिलास पानी टोटल फ्लूइड्स हो जाने चाहिए। जैसे मिल्क दिया है तो फिर वो हमने फ्लूइड में काउंट कर लिया। पूरे दिन का 12 से 14 गिलास, 12 to 14 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड इन टोटल होना चाहिए, पेशेंट का भी एंड केयर टेकर्स का भी। क्यों इतना फ्लूइड होना चाहिए? क्योंकि कोरोना के जो हमको रिजल्ट्स समझ में आ रहे हैं, जो उसकी जिस तरह से वो बॉडी पे काम कर रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि वो सभी मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं वो एरर्स क्रिएट कर रहा है उसमें। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो किडनीज भी, सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं उससे। किडनीज पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, लिवर पर इफेक्ट पड़ रहा है, लंग्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल सी एक चीज पता है कि सबसे अच्छा डिटॉक्स जो है वो वाटर है। अगर हम बहुत सारा वाटर पीते रहते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट्स, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो हमारी टी सेल्स, फाइटर सेल्स और कोरोना की जो अंदर टसल चल रही है, उस युद्ध में जितने शहीद हुए उन सबको भी तो बॉडी से डिस्कार्ड करना होता है। वो स्प्लीन के थ्रू होता है, बहुत बहुत सारा मेटाबॉलिज्म उसके पीछे काम कर रहा होता है। बट इन सब का जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं। वेस्ट जो है सारा का सारा किडनी के थ्रू बाहर जाता है। तो जितना ज्यादा हम फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसलिए 12 से 14 गिलास फ्लूइड या वाटर हमको देना है। तो हमने बात किया 10 बजे तक का। अब 2 घंटे के बाद फिर से टाइम हो गया है कुछ और खिलाने का, 12 बजे के करीब। 12 बजे के करीब अभी यहाँ पे एक और कंट्रोवर्शियल ट्रूथ है। बहुत सारे लोग कोरोना के केस में या कभी भी फीवर होता है तो नारियल पानी लेते हैं। नारियल पानी जहां तक हो सके, अगर आपको कोल्ड हुआ है तो आप मत लीजिए। ये भी एक फैक्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में, न्यूट्रिशन साइंस में भी, कि अगर आपको लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तो नारियल पानी उल्टे काम करता है। तो नारियल पानी मत दीजिए। राइट, तो नारियल पानी की जगह पे हम और क्या दे सकते हैं? वहां पर हम दाड़म का जूस दे सकते हैं। दाड़म एंड टोमेटो का मिक्स करके डाइल्यूटेड, एवरी जूस शुड बी डाइल्यूटेड। कभी भी कोई कॉन्सेंट्रेटेड जूस किसी को भी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो मौसम्बी का जूस हो, चाहे वो दाड़म पोमेग्रेनेट का जूस हो, चाहे वो वाटरमेलन का जूस हो। जो भी आप जूस बनाते हैं उसमें 3/4 जूस एंड 1/4 पानी ये होना ही चाहिए, ताकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म जो है वो आप जब पिएंगे तो वो आपकी स्टमक का जो HCl लेवल है, जो pH लेवल है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अदरवाइज कॉन्सेंट्रेटेड जब आप जूस पीते हैं तो वो आपके स्टमक के अंदर जो HCl है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इस pH को जाते ही एकदम से और अप कर देता है। और जैसे वो और अप कर देता है तो जो हमको फायदा मिलना चाहिए था उसकी जगह पे हमको नुकसान क्या हो रहा है? हमें एसिडिटी, क्रॉनिक एसिडिटी हो जाती है। एंड एक बुरी चीज और होती है, जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल एंड देयर आर सो मेनी विटामिन ऑल्सो जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जब आप इतने सारे विटामिन मिनरल्स खा रहे हैं और उसके साथ वो मीडियम ही नहीं दे रहे जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो, तो आपने जो खाया उसमें से बहुत सारा तो आपका नुकसान ही हो जाने वाला है। तो इसलिए जब भी आप फ्रूट खाते हैं उसके साथ पानी पीना चाहिए, या फिर जब भी आप जूस बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करना चाहिए, 3/4 एंड 1/4 का रेशियो में। कोरोना के पेशेंट को आप ड्रैगन फ्रूट खिला सकते हैं, पपाया खिला सकते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं अभी, और सीजन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, तो सारे फ्रूट्स खिलाने हैं सिवाय बनाना एंड सीट्रस फ्रूट्स के। तो राइट, ये हो गया हमारा 12 बजे के करीब। हमने फिर से एक सर्विंग फ्रूट्स का दिया एंड उसके साथ हमने जो रागी और मखाना का जो पाउडर किया था उसको, चाहे तो आप 1 कप मिल्क में उसको दे सकते हैं, हॉट मिल्क में, बट फ्रूट एंड इसमें थोड़ा सा हमें गैप रखना है। इट कैन बी 20 to 25 मिनट्स का गैप, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्रूट सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं और बहुत फास्ट ट्रांजिट टाइम होता है उनका।
स्टमक से इंटेस्टाइन्स की तरफ जाने का, एंड इंटेस्टाइन से उसका जो निकल जाने का टाइम होता है दैट इज वेरी फास्ट। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 20 से 25 मिनट का अगर आपने गैप रखा फ्रूट में एंड किसी भी दूसरी चीज में, तो दैट इज फाइन। अगर इस जगह पे फ्रूट खाने का मन नहीं है पेशेंट का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सूप दे सकते हैं। सूप्स हम कौन कौन से दे सकते हैं? फॉलिक एसिड रिच सूप्स दे सकते हैं। क्यों फॉलिक एसिड? अभी हमने इतना सारा 1 साल से हम सुन रहे हैं जिंकोविट खाना है, लिमसी खाना है, फॉलिक एसिड खाना है, ये हर चीज पे इम्यूनिटी बूस्टर वो भी हम देख रहे हैं। समझना हमें ये है कि ये क्यों विटामिन सी, क्यों फॉलिक एसिड और क्यों जिंक। एंड ये भी अब समझ में आ रहा है 1 साल के बाद, इतने सारे डेटा सामने आ रहे हैं कि इतना ज्यादा जिन्होंने जिंक खाया उन्हें इतने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं, इनफैक्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इतना सारा जिंक हमें जिसकी जरूरत ही नहीं है। किसी ने भी आरडीए चेक नहीं किया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना होता है वो किसी ने चेक नहीं किया, और एकदम हायर लेवल पे हमने जिंक के टेबलेट्स खाने शुरू किए, एंड दैट वाज डिजास्टर। वो सबसे बुरी चीज है जो हम कर चुके हैं। बट अब से हम ये ध्यान रखें कि जिंक हमें हमारी डाइट में ही सफिशिएंट मिल जाता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा एज सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन सी को भी हम जो हम डाइट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें इतना सफिशिएंट विटामिन सी हमें मिलने वाला है कि हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, जो पेशेंट है उसको थोड़े दिन के लिए, शुरू के जो 3-4 दिन है, कोरोना के शुरू के 3-4 दिन, वहां पर हम उसको 1000 mg एक्स्ट्रा विटामिन सी देंगे, ताकि उसका विटामिन सी का डोज जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए और वो कोरोना वायरस को भगा सके। लेकिन 3-4 दिन के बाद इतना नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि विटामिन सी अगेन एक विटामिन है और इसकी भी एक्सेस तो बैड है, पॉइजन है। स्किन पे रैशेस शुरू हो जाएंगे, स्टमक में कितनी सारे अपसेट शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एंडलेस, वो लिस्ट बहुत लंबा है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करते। बस सिर्फ ये याद रखिए कि कोई भी सप्लीमेंट बहुत कंटिन्यूअसली नहीं लेना है। ये कोरोना पेशेंट को शुरू के 4 दिन कंपलसरी दे देना है हमें सारी विटामिन सी रिच न्यूट्रिएंट्स के साथ 1000 mg एक्स्ट्रा। बट जिंक हमें नहीं देना चाहिए, वो 3-4 दिन के लिए भी देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जिंक ही जाकर के लंग्स को खराब भी कर रहा है, तो वो नहीं देना चाहिए। हमारी डाइट में जिंक होना चाहिए। तो जो चीजें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं, जैसे चाहे मैंने मखाना आपको बताया या हाई ओरैक वैल्यू वाली जितने भी मसालाज की हम बात कर रहे हैं, कॉन्कॉक्शन की हम बात कर रहे हैं, हर चीज वो है जिसमें सिलेनियम, जिंक और फॉलिक एसिड भरपूर है। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे सूप कौन से देने हैं, फॉलिक एसिड रिच सूप देने हैं। क्यों फॉलिक एसिड की हम बात कर रहे थे? क्योंकि फॉलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन सी, ये 3 चीजें रॉ मटेरियल है आपकी फाइटर सेल्स के सिंथेसिस का, इसलिए ये तीनों चीजें देना बहुत जरूरी है। तो अगर ये तीनों चीजें आपकी डाइट में है तो आपकी फाइटर सेल्स शहीद होती जा रही है, मरती जा रही है, बट नई भी फटाफट से बनती जा रही है। तो वो रिप्लीट करते जा रहे हैं। हम जितनी डिप्लीट हो रही है उतनी हम उसको रिप्लीट कर रहे हैं। रिप्लीट हम तब कर पाएंगे जब हम उतना न्यूट्रिशन लेंगे, रॉ मटेरियल होगा तभी तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर टी सेल्स बन रही हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी सेल्स हमारी बन रही हैं, फाइटर सेल्स, वो बन पाएंगी। तो जहां कहीं पर भी हम प्रोटीन रिच कोई भी चीज ले रहे हैं, वहां बाय डिफॉल्ट मैं जो आपको चीजें डाइट में डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैं ध्यान रख के ही कर रही हूँ कि फॉलिक एसिड भी साथ में आ जाए। अब सूप जो 3-4 एक सूप्स हैं, ये हम नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1, स्पिनच, मूंग दाल एंड टोमेटो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये एक सूप हो सकता है। देन ब्रोकली आमंड भी बहुत अच्छा सूप है, टेस्टी भी लगता है, वो भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आज ही एक बच्चा है वो इन्फेक्टेड है एंड ही वाज आस्किंग कि आंटी इतने सारे सूप्स आपने लिखे हैं, ब्रोकली आमंड आपने मुझे नहीं बोला है, क्या वो ले सकते हैं? ये तो ब्रोकली आमंड अगर पसंद है तो वो भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा और सेफ रहता है मिक्स वेजिटेबल सूप, लेकिन इसको प्रोटीन रिच भी करना है। तो अब क्या करेंगे, होममेड थोड़ा सा छेना, दूध को आपने, क्यों होममेड में बोल रही हूँ, क्योंकि जो बाहर पनीर मिलता है ना,
वो ऑर्गेनिक नहीं होता। और ये टाइम ऐसा है कि एक तो पेशेंट है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वहां पर हमें थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है। आप सिंपली 1 गिलास मिल्क लीजिए, उसको बॉईल करिए, बॉईल होते हुए मिल्क में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए और वो फट जाएगा। वो ऊपर का जो प्रेसिपिटेट है दैट इज छेना, होममेड पनीर, वो आप फ्रेश पर्सन को खाने दीजिए। दिस इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब जो नीचे वाला जो पानी बचा ना, दैट इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस, दैट इज वे प्रोटीन, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसका हम सूप का ग्रेवी में, सूप में डाल सकते हैं, सब्जी का ग्रेवी में हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे आटा गूंथ सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल सूप आप दे सकते हैं, आमंड ब्रोकली सूप आप दे सकते हैं, आप पालक, टमाटर और लौकी का सूप दे सकते हैं, मूंग दाल, टमाटर और पालक का सूप दे सकते हैं, सिर्फ लौकी और टमाटर का सूप दे सकते हैं। जो भी आप सूप दे रहे हैं, एक चीज उसके साथ कंपल्सरी खिलाएंगे और वो है पंपकिन सीड्स। 1 स्पून पंपकिन सीड्स किसी भी सूप के साथ हमें देने हैं। क्यों? क्योंकि वही जो मुझे पैकेज देना था ना न्यू सेल्स को सिंथेसिस के लिए, तो वो न्यू सेल सिंथेसिस के पैकेज में ही आता है। तो सूप प्लस 1 स्पून पंपकिन सीड्स। स्मूदीज मैं नहीं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी बिकॉज कर्ड बेस्ड स्मूदीज तो नहीं, यस मिल्क बेस्ड, अगर कोकोनट मिल्क बेस्ड स्मूदीज आप लेना चाहते हैं तो वो भी बिफोर लंच 12 बजे के करीब आप ले सकते हैं। देन लंच में क्या देना चाहिए? कुछ भी फ्रेश, गरम, अच्छा घर का बना हुआ, कम मसालेदार, कम ऑयली खाना आप सब कुछ खिला सकते हैं। बस रेनबो पर फोकस करना है, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देना है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी होना चाहिए, एक कोई कठोर या कोई पल्सेस में से कुछ जरूर होना चाहिए। एंड पनीर या छेना हम पहले खिला चुके हैं, अगर वहां पे नहीं खिलाया आपने साथ सूप के साथ, तो आप सब्जी की तरह से पनीर दे सकते हैं, या वैसे ही एज सैलड आप थोड़ा सा 1/4 बाउल से भी कम बनता है एक्चुअली 1 ग्लास मिल्क का पनीर, तो उतना सा ही देना है, 2-3 स्पून, वो आप लंच के साथ में दे सकते हैं। एंड एक चीज बहुत जरूरी देनी है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ देना है। ये गुड़ देने का साइंटिफिक रीजन है क्यों देना है, और हमें भी अभी खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि वो एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, आपका पूरा माउथ एंड इसोफेगस तक के पूरे ट्रैक को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एंड एल्कलाइन मीडियम में कभी भी कोई भी वायरस मल्टीप्लाई नहीं होता। एल्कलाइन मीडियम जो है वो हमें सेफ कर दे रहा है। तो वो एक प्रोटेक्टर शीट है, जो एल्कलाइन एक लेयर बन रही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा गुड़ भी खाना, एनर्जी दे रहा है, दैट इज वन गुड पार्ट। एंड उसमें से हमें सिलेनियम एंड जिंक भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट ऑर्गेनिक गुड। बट मेरा यहाँ पे सजेस्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि वो आपका इसोफेगस को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करे। तो यहाँ तक हमने लंच का बात किया। लंच के बाद 2 आवर्स फिर हो जाएंगे। 2 आवर्स के बाद अभी इतनी भूख नहीं होगी, तो अब यहाँ पे क्या दे सकते हैं? भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ देते हैं जिससे कि खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और जो रिफ्रेशिंग भी हो। वो क्या हो सकता है? वो हम वरियाली और मिंट का एक पानी शरबत के जैसा विदाउट शुगर, वो हम दे सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके। वरियाली को आप सुबह में भिगा दीजिए और मिंट के पत्तों को आप पीस दीजिए, दोनों को 1 गिलास पानी में मिक्स करिए। 1 स्पून भीगे हुए सौंफ के पानी के अंदर आपने 1 स्पून मिंट का पेस्ट मिक्स किया, ये आप पिला दीजिए। ये इससे अच्छा डिटॉक्स कुछ हो ही नहीं सकता, और इससे अच्छा कोई डाइजेस्टिव एड भी नहीं हो सकता। अब इसे बहुत, जो जिंकोविट का टेबलेट में जितना जिंक है, उतना जिंक अगर हमको सिर्फ इस एक ड्रिंक में करना है तो भी पॉसिबल है। एंड दैट इज वेरी सेफ बिकॉज वो आपका सिर्फ न्यूट्रिशन से आ रहा है, आपका सिर्फ फूड आइटम से आ रहा है। तो दैट इज वेरी गुड। वो डाइजेस्ट बहुत इजीली होगा बिकॉज जिस अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी बॉडी बनी है, जिस फूड आइटम को हम हैबिचुअल हैं एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज करने के, हम वो खा रहे हैं। आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हम नहीं खा रहे हैं, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हम नहीं खा रहे हैं। तो इस ड्रिंक में हम क्या डाल सकते हैं? जीरा पाउडर डाल सकते हैं। जीरा में बहुत ज्यादा जिंक होता है। और एक चीज और करिएगा, अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक हम ये प्रिवेंशन और स्ट्रेटेजीज वाली बातें कर रहे हैं, मतलब कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए, एक और चेंज करिएगा, अपनी
जो आपका मसाला दानी होती है उसमें एक तो काली मिर्च रख देना है, क्योंकि हल्दी के साथ आपको हर जगह पे काला मिर्च डालना है। और दूसरा, आपका डाइनिंग टेबल पर आपको रोस्टेड जीरा पाउडर रख ही देना है। आप जो भी सब्जी, जो भी सैलेड खा रहे हैं, या पानी में भी आप उसको डाल के पी सकते हैं, जैसा ये मिंट एंड फेनल सीड्स का जो मैंने आपको पानी बताया, इसमें भी आप डाल के पी सकते हैं। तो दिन का 2-3 चीजों में भी अगर आपने जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून एवरी टाइम डाला तो ये बहुत ही हेल्दी है। ये इतना आपने एक ड्रिंक दे दिया। और उसके बाद आप इवनिंग टाइम में अगेन फ्रूट्स दे सकते हैं, बिकॉज हमें फ्रूट्स की 3 to 4 सर्विंग्स देनी है। एंड सारे फ्रूट्स एक साथ तो खाएगा नहीं पर्सन, जो सुबह में नहीं दिया वो यहाँ पर अब देते हैं। हमें फुल स्पेक्ट्रम देना है, सिर्फ एक ही फ्रूट नहीं देना है। सुबह में अगर आपने एप्पल दिया है तो यहाँ पे आप ड्रैगन फ्रूट दे सकते हैं। सुबह में अगर आपने चेरीज दिया है तो यहाँ पे आप पीच एंड पेयर दे सकते हैं। सुबह में अगर आपने पोमेग्रेनेट का जूस दिया है तो यहाँ पे आप वैसे ही फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स कट करके खाने को दे सकते हैं। तो वैरायटीज हमको जरूर ऐड करनी है। एक चीज और हमें यहाँ पे करनी है, जो इवनिंग टाइम वाला 4 बजे 5 बजे के करीब जो भूख लगती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गर्म नाश्ता भी देना है। एंड दैट शुड बी वेरी लाइट, डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाए। जैसे आप उपमा, पोहा ऐसा कुछ बना के दे सकते हैं। ब्रेड्स बिल्कुल नहीं देना है, बिकॉज फंगस ग्रोथ भी अभी इतना ज्यादा डेंजरस है कि वो हमें रिस्क ही नहीं लेना है। तो जितनी भी गर्म चीजें आप बना सकते हैं और इजी टू डाइजेस्ट, कुकिंग स्किल आपके पास बहुत है, वो आप कुछ भी ऐसा बना के दीजिए। और ट्राई करिए कि जो भी चीजें आप बनाते हैं उसका प्रोटीन उसके अंदर ज्यादा हो। जैसे आप दाल का ढोकला बना सकते हैं, जैसे आप मूंग दाल का चिल्ला बना सकते हैं। जैसे अगर आप उपमा भी बनाते हैं तो उसके अंदर कोकोनट के पीसेस, थोड़े से फ्रेश कोकोनट डाल सकते हैं, एंड उसके अंदर थोड़े से कैश्यू नट्स डाल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने वैसे ही उपमा या कोई भी चीज खाने को दिया और उसके साथ हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स दे दिए, बट ड्राई फ्रूट्स सोक्ड होने चाहिए, ठीक है? वो सोक्ड एंड हैंडफुल, बिकॉज सुबह में हमने एक बार दिया है, एक बार हमने यहाँ पर दे दिया, तो उतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद इवनिंग टाइम में अगेन हम एक सूप देना चाहते हैं, और ये सूप कंपल्सरी लाइकोपीन रिच होना चाहिए। क्यों लाइकोपीन? क्योंकि कोएंजाइम Q और लाइकोपीन इम्यूनिटी को जिस लेवल तक लेके जा सकता है, उतना तो अभी तक कोई ऐसा सप्लीमेंट मार्केट में भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जगह है जहां पर आप टोमेटो बेसिल सूप दे सकते हैं, और ये आंख बंद करके हर रोज का हम एक ही सूप दे सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कैरेट एंड बीट डाल दिया तो ये सोने पे सुहागा। तो कैरेट, बीट, टोमेटो, बेसिल, ये सूप। अगर बेसिल नहीं अभी फ्रेश मिल पा रहा है तो क्या करेंगे, 5 लीव्स ऑफ तुलसी हम उसमें डाल देंगे। अगर शाम तुलसी है तो और भी अच्छा है, शाम तुलसी आप उसमें डाल सकते हैं। ये लाइकोपीन, कोएंजाइम Q, जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक पैकेज है, तो ये देना है शाम को। अब इसके बाद डिनर में क्या देना है? डिनर में जो भी आपका मन करता है वो पकाइए, बस शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, बहुत मसाले नहीं होने चाहिए, एंड ऑयली नहीं होना चाहिए। इतना सा ही हमें ख्याल रखना है। एंड रात को सोते समय 1 ग्लास मिल्क, अगेन वो मिल्क याद रखना है हमें, जितनी बार भी आप मिल्क दे रहे हैं दिन में 2 बार तो देना ही है, और वो कफ ना करे, वो फ्लैटुलेंस क्रिएट ना करे, वो गैस ना करे, वो नौशिया क्रिएट ना करे। इसके लिए उसमें गंठोड़ा, थोड़ा सा ब्लैक मोटी वाली इलायची एंड फेनल सीड्स, वरियाली 1 चम्मच के जितना, ये डाल करके बॉईल कर देना है। एंड अगर पेशेंट है तो उसको हल्दी और ब्लैक पेपर भी डाल के दे सकते हैं आप। अगर पेशेंट नहीं है, अपने लिए आप ले रहे हैं, तो नाउ स्टॉप हल्दी एंड पेपर, सिर्फ इतनी चीजें डाल करके गर्म मिल्क ले लीजिए। ये पूरे दिन का एक शेड्यूल चला, और बीच बीच में हमने सप्लीमेंट्स का भी बात किया कि किस तरह से हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने की जरूरत है, डाइट से ही हम सफिशिएंट सब कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक बीच में 1-2 लोगों के हैंड भी रेज हुए थे, बट आई कुड नॉट पे अटेंशन। सो
I think Arpita, you are there. We can take a few questions that members have in the chat box. Yeah, we can. So one of the question is, which good is good, organic, dark brown, or white? And is it okay to have jaggery every day in our meal, like in most of the meals? See, organic brown good is best. जो एकदम ब्लैक होता है वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो बिल्कुल रॉ होता है और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है. ब्राउन गुड़ जो है दैट इज प्योर ऑर्गेनिक गुड़, वो लेना चाहिए. एंड अगर एवरीडे लेना है ना, तो हमें एक काम करना पड़ेगा. गुड़ को थोड़ा सा पीस दिया आपने, उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया, एंड उसमें थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन, अजमा, वो आपने उसमें मिक्स कर दिया. अब ये वाला गुड़ आप एवरीडे ले सकते हैं हर मील के साथ. अदरवाइज सिर्फ एक मील के साथ आपने, या मेजर मील्स दो, लंच एंड डिनर के बाद में स्मॉल पीस, अराउंड ½ इंच का पीस अगर आपने खाया, दैट इज सफिशिएंट. बहुत गुड़ नहीं खाना है. एंड यस, गुड़ से मुझे एक चीज और याद आया जो मैं मेंशन करना भूल गई. अभी पिछले मेरे पास 10-15 दिन से जो पेशेंट्स आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे लोगों को स्टीरॉइड्स लेने पड़े ड्यूरिंग दिस कोविड. और उसके बाद अभी 2 तरह के आपके पास पेशेंट्स आते हैं. एक तो जो जिन्होंने स्टीरॉइड्स लिए, उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनको बहुत सारा खाना चाहिए, एंड वेट पुट ऑन हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स. 2 रीजन है, वाटर रिटेंशन भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा उनको वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है. पॉलीफेजिया जिसको बोलते हैं, पॉलीफेजिया एंड वाटर रिटेंशन, दोनों कंडीशंस है. एक तो ये टाइप के पेशेंट्स हैं. दूसरे वो पेशेंट्स हैं जिनको स्टीरॉइड्स नहीं दिया, लेकिन दूसरी जो मेडिसिन थी, जैसे रेमडेसिविर थी, या जो भी दूसरी बाकी की और मेडिसिन थी, तो वो पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें लूज मोशंस हो रहे हैं, या कुछ भी वो जो खा रहे हैं उन्हें वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा. उन्हें प्रोबायोटिक देने का जरूरत है. अब वो प्रोबायोटिक में क्या दे सकते हैं, बिकॉज अब वो नेगेटिव है, अब वो बिल्कुल ठीक है, सिम्टम्स ठीक हो चुके हैं, तो नाउ वी कैन स्टार्ट कर्ड. आपने देखा होगा मैंने पूरे डाइट प्लान में कहीं पे भी कर्ड का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोविड पेशेंट को कर्ड नहीं देना था. ठीक है, बट अभी वो बिल्कुल ठीक है और इम्प्रूवमेंट है, कफ ठीक है, लंग्स ठीक है, तो हम कर्ड देना शुरू कर सकते हैं. बट एक चीज और है, अगर अभी भी कफ ठीक नहीं है, अभी भी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर्ड से आटा गूंथ सकते हैं. जो हम लोट बांधते हैं, डो नीडिंग जो हम करते हैं पानी से, उसकी जगह हम दही से कर सकते हैं. तो लैक्टोबैसिलस तो आपको मिल ही रहा है, हमें तो प्रोबायोटिक देना है, लैक्टोबैसिलस ही देना है, तो वो हम इस तरह से दे सकते हैं कर्ड को खाने के बजाय. क्योंकि कर्ड खाते हैं तब वो कफकारी है, बट जब वो पक जाता है तो वो कफकारी नहीं है. कड़ी यूज कर सकते हैं, एक मील में हम कड़ी दे सकते हैं. फिर हम क्या कर सकते हैं, हर सब्जी में बनते हुए 2 से 3 चम्मच हम उसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं. तो ऐसा करके हम प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. उसके लिए जो रेडी ड्रिंक्स आते हैं ना प्रोबायोटिक के, वो सजेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. उसकी जगह नेचुरली ये करें. एक चीज बहुत अच्छी और कर सकते हैं, जिससे B12 भी इंक्रीज होगा और प्रोबायोटिक भी इंक्रीज होगा. जो आपने आटा गूथा ना दही से, इस गूथे हुए आटे को आप 2 आवर्स के लिए ढक के छोड़ दीजिए. ये स्लाइट फर्मेंट हो जाएगा. ये फर्मेंटेड आटा जो है, ये किसी भी जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स रेडी अवेलेबल है उनसे बेटर है. तो B12 रिच हो गया एंड प्रोबायोटिक रिच हो गया. तो जिनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुआ है आफ्टर कोरोना, कुछ दिन के लिए ये छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे तो डेफिनेटली लाइन पे आ जाएगा. जी अर्पिता, अभी पूछिए आप. Another is, some people are facing loose motions after taking medicine. So is there any way, or like naturally we can combat it? Please come again. You were not audible. Some people are facing loose motions after taking medicine. So is there any way? यही जो मैंने अभी आपको आंसर किया. एक लोगों ने जिन्होंने स्टीरॉइड लिया है मैंने उनका बताया, और दूसरे लोगों ने जिन्होंने बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स लिया है उनका बताया. अगर मेडिसिन की वजह से लूज मोशंस हुआ है तो प्रोबायोटिक देना पड़ेगा. एंड जो भी अभी छोटी छोटी से मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दिए हैं, ये नोट डाउन किए होंगे उन्होंने, डेफिनेटली ठीक होगा. Another is it good to give soup daily to children? Yes, you can. Why not?
बट एक चीज ये जरूर ध्यान रखना है कि एक ही सूप नहीं, बच्चे को सिर्फ टोमेटो सूप पसंद है, हम तो एवरीडे टोमेटो ही दें। टोमेटो बेसिल का मैंने बात किया है, बट उसमें भी मैंने गाजर और बीट ऐड करने को बोला, एंड वो भी उतने ही दिन जितने दिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। एक्सेस ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट इज पॉइजन, वो एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना है। तो आप सूप एवरीडे दो, लेकिन उसमें वैरायटीज ऐड कर दो। Then can all dry fruits be soaked overnight? 6 to 7 आवर्स सफिशिएंट है उसको सोक करना, और सोक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस होते हैं, इन सब में फाइटिक एसिड होता है। तो ये जो फाइटेट्स हैं ये न्यूट्रिएंट बाइंडर्स होते हैं। तो ये आपके ड्राई फ्रूट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, जितना भी उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो हमारी बॉडी तक तो पहुंचने ही नहीं देते, उसको बाइंड कर देते हैं। न्यूट्रिएंट बाइंडर्स हैं ये। तो इसलिए हमें उसको सोक करना पड़ता है। जब हम उसको सोक करके वो पानी डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो फाइटेट्स उसमें डिस्कार्ड हो जाते हैं, लड़का सो रहा है, और ये इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। Regarding this soaked almonds, if I can ask you one question. Normally what happens is, वो बोलते हैं कि बादाम को रात को भिगो के soaked almonds सबको खाने चाहिए, कोई बोलते हैं छिलका हटा के खाना चाहिए, बोलते हैं छिलका हटा के खाना चाहिए। So what is the correct way of eating that soaked almonds? इसको एक बहुत डिटेल, इफ यू आर एबल टू राइट डाउन, प्लीज एक राइट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर या फेसबुक पर, दोनों पर आपको मिल जाएगा। न्यूट्रिशन ऑन टिप्स FB पेज है, न्यूट्रिशन ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल है। उसमें यूट्यूब चैनल में फर्स्ट मेरा वीडियो ही यही है, आमंड्स को छिलका उतार के क्यों खाना चाहिए, एंड काफी डिटेल में है, तो वो आपको अच्छे से उसमें मिल जाएगा। न्यूट्रिशन ऑन टिप्स का जो FB पेज है, उस पर भी ये वीडियो है, तो प्लीज आप जरूर उसमें चेक कर लीजिए। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो nutritionontips.com जो मेरा वेबसाइट है, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। nutritionontips@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं, तो हम डिटेल उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। बट यस, छिलका उतार के खाना चाहिए, ये एक टेक होम नोट्स है। क्यों उतार के खाना चाहिए, वो बहुत लंबा थ्योरी है। And all dry fruit should be soaked, or are there any exceptions to it? All. In regular days, सिवाय खजूर के, खजूर को अगर नहीं भिगा रहे हैं तो that is okay. Another one is, in regular days, how much pumpkin seeds we should take? 1 spoon, not more than that. 1 teaspoon. 1 teaspoon for adult. मैं जहां पर भी बात कर रही हूँ, रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमेन की बात कर रही हूँ, है ना। तो एडल्ट्स के लिए 1 टीस्पून सफिशिएंट है। बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए तो 1/4 टीस्पून भी सफिशिएंट है। बट यस, स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो इसके साथ थोड़े से बादाम भी होने चाहिए, पिस्ता भी होना चाहिए, सब कुछ। और जो ये जो मैंने पंपकिन सीड्स आपको दिन में लेने के लिए बोला है, वो एक पूरा पैकेज बोला है, वो उस तरह से लेना है वहां पे। I think most of the questions are covered now. Ma'am, there is a question in the Q&A. I don't know if you have taken, Arpita. Can we give turmeric milk daily to kids? It's not. I cannot see it. In the Q&A, yeah. So can we give turmeric milk daily to kids? That's the question. See, मैं हर रोज एक ही चीज देना तो नहीं ही प्रेफर करूंगी। हल्दी जैसा चीज जो है वो फायदा भी बहुत करता है, तो उसका नुकसान भी है। अगर आप सिर्फ 1 पिंच डालते हो ना, देन इट इज मेडिसिन। अगर उससे ज्यादा आप डाल रहे हो एवरीडे, तो फिर वो क्रॉनिक एसिडिटी का एक रीजन बन जाएगा, नोशिया एंड भूख सप्रेस हो जाएगी, हंगर सप्रेस करता है ये। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एवरीडे डालना है तो सिर्फ 1 पिंच अगर ये है, तो हाफ पिंच ब्लैक पेपर भी होगा साथ में, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। और अब गर्मी के मौसम में अगर आप हल्दी और ब्लैक पेपर वाला मिल्क दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मिल्क में आप फेनल सीड्स, वरियाली डाल करके ही बॉईल करें, ताकि वो हल्दी और ब्लैक पेपर वो बच्चे को गर्म ना करे, तो नोज ब्लीडिंग कभी ना हो। या टीनेजर्स हैं तो पिंपल्स निकल जाएंगे, वो फिर दूध पीना बंद कर देंगे। So, ma'am, last question: can sprouts be taken as protein source for patients? Sprouts is not easy to digest. अगर उसको आपने स्टीम कुक कर दिया, then it is good, फिर आप ले सकते हैं।
And one question I have, it is that like nowadays we see a lot of discussions where it is told that many people are lactose intolerant and that milk is not like the most essential thing for children as well as adults. So like, can you just help us, like, what if I am lactose intolerant? Is it that I'll be void of calcium? No. See, you are lactose intolerant ना, तो तुमको दूध से प्रॉब्लम है, दही से या मिल्क के अदर प्रोडक्ट से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. You can have buttermilk, you can have curd, you can have this पनीर, homemade छेना. तो मिल्क के बाकी के प्रोडक्ट्स तो ले ही सकते हैं. तो कैल्शियम का सिर्फ और सिर्फ सोर्स मिल्क हो ऐसा नहीं है. अगर मिल्क नहीं लेते तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यस, पूरे दिन का 3 सर्विंग के जितना, 3 ग्लास के जितना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपकी डाइट में होना चाहिए. वो कर्ड की फॉर्म में हो सकता है, वो पनीर की फॉर्म में हो सकता है, छाछ की फॉर्म में हो सकता है. तो अगर ऐसा कर देती हो कि लंच के टाइम पे 1 ग्लास छाछ पी लिया और 1 कटोरी के जितना दही खा लिया और पूरे दिन का एक बार कहीं पर भी आपने होममेड छेना खा लिया, तो ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको. बट उसके ऑल्टरनेटिव्स आमंड मिल्क एंड ये सब नहीं लेना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. I think thank you so much, ma'am. All the questions are answered. I would now request CA Nikita Paryani to please give a vote of thanks to ma'am. Thank you, Harit. Thank you, Arpita. A very good evening to everyone. Hope I'm audible. Yes, Nikita. I would like to thank our special guest today, Ms. Rita Bharadwaj, for giving us such insightful information on COVID prevention and post-COVID recovery. The entire world at present is battling the COVID-19 pandemic. It has hence become imperative to take necessary precautions for its prevention, and it's equally important to be equipped with right kind of knowledge regarding post-COVID care, which is very important for optimum recovery. Ms. Rita has presented us with wealth of information on this subject today, and also ma'am has shared so many amazing diet tips on this topic. I'm sure all of us will reap benefits of this knowledge shared by her and come back stronger while fighting COVID. Lastly, I would like to mention, stay safe, everybody. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Arpita. Thank you, everyone. Stay safe, stay healthy, stay happy.